Hello friends, myself Nisha, postgraduate in economics from Bangalore University. Friends, today I am here in front of you on the platform of Kalyani IAS Academy with a purpose. The purpose is to help you achieve your dream while being at home. Friends, to achieve any dream or having success in the examination, two things are must. First is patience, that is continuous effort, and second is right guidance. Right guidance you will be getting through the platform of this academy, and for continuous effort we will be giving you motivational lectures from time to time. Say एक एग्जाम्पल लेते हैं, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती. That's why I want all of you to have continuous effort. I want all of you to have continuous effort in a dedicated manner. For this, I'll be having 15 to 20 lectures on economy in a so simplified manner that you will be able to write your answers on your own, and not only that, you will be able to have idea about the economy around you. Let's start step by step. See, in the syllabus, we have paper 2, part B, economics and sociology together. We will take economics. In the unit 1, we have issues and initiatives in the field of agriculture, industry and services. Here, agriculture means primary sector, industry means secondary sector, and services means tertiary sector. Then we'll deal with measurement of national income. In national income, we'll deal with GDP, NDB, national income from abroad, depreciation, etc. We'll also get to know which is the best measure of national income in our country and why. Then we'll deal with functions of RBI, which is the main controller bank of India, and we will have a look on the monetary policy and fiscal policy, how in totality, in combination, helps to decrease inflation and deflation in the economy. Then we will deal with public distribution system, PDS, poverty, unemployment, and other major problems and challenges of Indian economy and how we can reduce these. Then in the international arena, we will have international trade, balance of payment, International Monetary Fund, World Bank, SAARC, NAFTA, etc. So let's take one by one. This is the index where these slides will be covered, where we will deal with definition of economics, how economics evolved, what is economics importance, economic activities and different scholars, then what are the branches of economy, and what is the difference between economics and economy. Let us start. First of all, what is definition of economics? The term is a Greek word, oikonomia. See, oikos means household, nomos means management. Oikonomia means household management. It is nothing but the management of household. It is very simple. Say, we'll take an example. Your father has a salary of 16,000. In your family, there are 4 members, father, mother, daughter, and son. In case this 16,000 is divided equally between four members, do you think it is a good economics? No. Because if it is given to a son may spend it in sports activities, the daughter may use in recreational activities. So for best utilization of resources, the money should be given to mother or head of the family. Because she knows what is the basic, say clothing, food, education. She will also try to have some saving, it is possible. इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी देश में या कहीं पे भी बेस्ट इकोनॉमिस्ट कौन है? हाँ, अमर्त्य सेन इज गुड इकोनॉमिस्ट, बट ये बेस्ट नहीं है. अगर हम लोकली देखें या अपने लेवल पे देखें तो योर एंड माई मदर इज बेस्ट इकोनॉमिस्ट, बिकॉज शी नोज कि हाउ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड, और उसी में से हम कुछ बचा सकते हैं. एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ money, where the wealth is at the center. Wherever we keep wealth at the center, that is economics. For example, अगर हम कहें कि we are going to a temple, do you think it is an economic activity?
Going to a temple is not an economic activity. But when you go to a temple, say buy a car or buy a magic, or anyways, you spend money. If you are going by car, you may go to a petrol pump for the petrol. When you are going to the temple, you may be purchasing prasad. For that, you will be giving money. So wherever you are giving the money, there is wealth. And wherever there is wealth, that is nothing but economics. Economics is actually the sequential economic activities we will study. First question arises कि हाउ इकोनॉमिक्स इवॉल्व. हमने ये तो देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है एटिमोलॉजिकली, लेकिन क्यों आई इकोनॉमिक्स, क्यों इवॉल्व हुई, कैसे इवॉल्व हुई. इन द अर्लियर टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, द मैन डिड नॉट हैड मेनी नीड्स. He did not have unlimited wants, but he used to be having nomadic nature. He used to go from one place to another place, have hunting, fishing and all that, and used to sleep anywhere he liked to. लेकिन जैसे जैसे जो है वो आगे की तरफ बढ़ता गया, unknowingly he might have scattered some grains on the soil. उसकी वजह से क्या हुआ, some plants were there, प्लांट्स हो गए, तो उसे लगा कि मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, एक नोमैडिक लाइफ जीता हूँ, क्यों नहीं मैं एक सेटल्ड लाइफ जीऊँ. फॉर सेटल्ड लाइफ ही स्टार्टेड हैविंग लार्ज फैमिलीज. वो कई जगह ट्राइब्स के फॉर्म में, कबीले के फॉर्म में रहने लग गया. व्हेन द पर्सन वॉज हैविंग एग्रीकल्चर, ही हैड सरप्लस बिकॉज ही वॉज the whole day he was engaged in a single activity called agriculture. उस सरप्लस को he thought बाकी लोगों ने अलग अलग काम स्टार्ट कर दिए, जैसे कारपेंटर, बार्बर, कॉबलर, टेलर. At that time they thought कि why don't we exchange the goods between us. Thus started the system of barter. But in this barter system also there were many problems. First was problem of double coincidence. Here we'll take example. Say there is a barber and a farmer. Farmer says to barber, I want you to cut my hair in the same style as was Amir Khan's hair in Dhoom 3. The barber says, okay, I'll do it. Farmer says, in return, I will give you 5 kg of rice. But here the barber says, no. I have so much of rice from the previous customers. I want tomatoes. So in this case, he has to get from somewhere tomatoes. Is it possible to get it? It will be very difficult for him to search that. So double coincidence wants both the people should have the requirement of their goods. Okay. Second problem is perishable goods and storage. See, some goods like milk, fruits are perishable in nature and not possible to store for long time. Third is divisibility of value. For example, if we take case of a cow here, say the cow is of 10,000 rupees. Okay, this person who is the owner of cow wants to have soft drink and full food worth 1,000 rupees. So can he cut the cow of 10,000 in 10 pieces and get this? No, it is not possible and it is worthless. In the same way, the famous painter Picasso, if he wants a cup of tea, can he divide the Picasso's painting in 1 mm and get 1 cup of tea? It will be ridiculous to do that. In the same way, we have the main problem called as fungibility. What is fungibility? Fungible items are those items which have uniform value and they are mutually exchangeable. Say, what is fungibility? In this example, we can take of gold. Okay, say there is 10 gram of gold in one side and 1 gram of gold into 10 pieces here. This 10 gram of gold, if it is melted and here also it is melted, it will be equal. So gold is fungible. But this problem exists in case of diamond. Say diamond is a 100 carat. 100 carat diamond is divided into 10 carat, though it looks similar. But the value of one diamond of 100 carat will be more because the bigger the diamond, it is more precious. Here the diamond will be smaller. So this is the problem with the barter system. Thus came evolution of money, where we can see earlier it was feathers, shells and beads, gems, precious metals, coins and money of today came like this. Then
In the new era, we have plastic money. Say we have debit card, credit card, etc. We have electronic money. Say हम मार्केट में जाएं और हो सकता है अपना कैश ले जाना भूल जाएं, अपना कार्ड ले जाना भी भूल जाएं, तो भी अगर अपना फ़ोन कनेक्टेड है तो वी कैन यूज़ UPI, भीम, फ़ोन पे एक्सेट्रा. इससे भी नया कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी. व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? आई विल डील विद इट लेटर. अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको. इट इज़ नथिंग बट अ डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी. इट इज़ नॉट इन कैश, एक्चुअली होते ही नहीं है. ठीक है, ये डिजिटली ही मिलती है और ये कई कंट्रीज में लीगल टेंडर है, पर इंडिया में इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर मनी. एग्जाम्पल इज बिटकॉइन और मोनेरो. मोनेरो इज ऑल्सो एग्जाम्पल. ओके. Now, importance of economics. What do you think? Why economics is important? See, economics जो है, based on economics, we have some theories, and that theory gives the base for practical application in economy. See, based on the theory of demand supply that we'll deal later, we have a general analysis, and according to that, the welfare schemes are introduced in any country. Practically, if we see, this is beneficial to producers, say for farmers, for a shoe factory. Okay, it is beneficial to laborers, it is beneficial to consumers. Consumers के लिए है ये beneficial, must है, because कंज्यूमर जो है एनालाइज करता है कि विच इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मेरे कम से कम पैसे खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो, ऑप्टिमम यूज. ओके, तो ये कंज्यूमर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिसर्च वर्क और एग्जामिनेशंस के लिए तो है ही, रिसर्च वर्क के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इकोनॉमी के लिए. इट इज़ बेनिफिशियल टू साइंटिस्ट, इट इज़ बेनिफिशियल टू गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती ही इसी बेसिस पे है. राइट. देन विल कम टू इकोनॉमिक्स. जैसे मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि एक सीक्वेंशियल नॉलेज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की. इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैंने एग्जांपल लिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज देयर इन आवर डे टू डे लाइफ. जैसे मैंने बताया कि टेम्पल गए, ये पेट्रोल भरवाया, प्रसाद खरीदा, सब में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. हेयर आई विल टेक एग्जाम्पल. सी, in economics activities, production is taken, consumption is done, distribution is done, and exchange is done. Why is production done? Because somebody wants to consume. अगर consumption की requirement नहीं होगी तो production नहीं होगा. Then it is distributed and exchange is there. Production is supply side. कोई भी market में दो चीज़ें होती हैं, supply and demand. और consumption क्या है? Demand. Demand side. We demand. Okay. We'll take one by one. First, economic activities. Production. What is production? Production is nothing but it is a process which is used to produce goods. How to produce goods? You convert the raw materials into finished goods. Here, goods के साथ साथ we take services also, because here we convert the idea or knowledge into the services. Why we do that? We'll take an example of cotton. This is a raw cotton. See, cotton is taken after cleaning. It is converted into thread. Thread is converted into cloth. After printing and going to textile industry, it becomes shirt. Okay. So, cost of cotton is very less as compared to shirt. So, in this way, what is increased? Productivity is increased. Right? यहाँ हमने देखा कि कॉटन से यहाँ पे यूजफुलनेस भी बढ़ गई और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई. What is this? This slide is about, can you have a guess? It is nothing but एयरपोर्ट सर्विस. एयरपोर्ट में हम जाते हैं तो स्क्रीनिंग होती है बैगेज की, चेक किया जाता है कि जो अलाउड आइटम्स है वही ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं. तो एयरपोर्ट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, दीज आर ऑल द सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड. राइट. नेक्स्ट, see, in this production, first of all, what do we take? Production cannot take place all of a sudden. For production to take place, we should have four factors of production. These are land, labor, capital, and entrepreneur. What is land? Any piece of land. Labor is skilled or unskilled. Skill which is technically sound. Technical knowledge है. Unskilled जो technically sound नहीं है. Capital is fixed and working. Fixed capital, say for a machinery or tractor, or for any business, you can have a building. This is all fixed capital. Okay. Working capital जो हम यूज करें और उस प्रोसेस में खत्म हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें ब्रेड का, ठीक है, तो क्या होता है, गेहूं सबसे पहले जो है
गेहूं का आटा बनता है, आटे से इसको लाया जाता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से ब्रेड बनती है। अब जब ब्रेड बनी तो ये जो कैपिटल थी गेहूं खत्म हो गया ना, फिनिश हो गया ना, इसे कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल, जो उस प्रोसेस में खत्म हो जाए। देन वी हैव एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर को हिंदी में बोलते हैं उद्यमी, राइट। एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज विलिंग टू एंड एबल टू टेक रिस्क। यहाँ दो चीजें हैं, willing to and able to take risk. One should be willing to take a risk because हो सकता है तो बिजनेस वो परस्यू कर रहा है, वो फेलियर हो या सक्सेस, उसमें रिस्क प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। देन ही शुड बी एबल टू हैव मनी। फॉर एग्जाम्पल अंबानी की बात करें तो अंबानी के पास हो सकता है इंटेलेक्चुअल लेबर हो तो एबल टू हो, पैसा भी हो तो एबल टू, बट ही शुड ऑल्सो बी विलिंग टू, तभी वो उस बिजनेस को चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। अब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बदले में जब ये काम करते हैं तो वी गेट सम रिवॉर्ड, जैसे कि लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट और लॉस। ओके, ये जो रिवॉर्ड है एक्चुअली दिस कम्स इन डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, लेकिन इसको हमने अभी यहां इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। नाउ कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? इट इज द यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स। दो चीजें बोली हैं यहाँ पे। डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, जैसे आपने चॉकलेट खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, ये सब डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन हो गया। कैन यू गिव ए एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन वांट? दे सकते हैं क्या? कलेक्टिव हमारी वांट क्या हो सकती है? जैसे कि हम बात करें डिफेंस की, हम सबको सुरक्षा चाहिए, ये कलेक्टिव गुड है। ये कौन देती है हमें? गवर्नमेंट देती है। सो इन दिस केस वी हैव direct and defense as collective good. See in this case chocolate, refrigerator, इनकी बात करें हम तो टाइम गैप इसमें हो सकता है। कैसे? मान ले a person purchases a chocolate, same time he is not consuming it, he may give it to his brother and he may consume it another day. So there is a time gap between production and consumption. और हो सकता है जो बायर है वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ सर्विसेज, अगर आप बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और सेम टाइम पे सर्विस को आप अवेल करेंगे। तो देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन दिस केस। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द इंडिविजुअल्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है, रिवॉर्ड, वो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन में आती है। देयर इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, से प्रोड्यूसर दे रहा है सीधे सीधे नेबर को, और इट कैन बी प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, और जनरली विच हैपन्स प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। जैसे होलसेलर में मान ले चोइथरा मंडी में सारी वेजिटेबल्स आ गई और वेजिटेबल्स रिटेलर के पास गई और बाद में उसको हमारे तक पहुंचाया गया, राइट। फोर्थ एंड लास्ट इज एक्सचेंज। व्हाट इज दैट? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग समथिंग अगेन समथिंग, ठीक है। हम जब कुछ देते हैं उसके बदले में चाहते हैं, जैसे कि एक स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं वी ओनली बार्टर। पहले बार्टर सिस्टम ही था, तो यहाँ पे एक सामान ले रहे हैं उसके बदले में दे रहे हैं। बाद में मॉनेटरी सिस्टम आया वेयर मनी वॉज इन्वॉल्व। दिस इज थ्रू द ATM और एनी अदर प्रोसेस। नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हेयर वी विल डील विद economist or scholars definition step by step. We will start with a definition of economics. See, Adam Smith, Alfred Marshall, Robbins and Samuelson, they were the economists who gave the definition as per their view. Okay, we'll deal with Adam Smith first, who is called as the father of economics. He wrote the book The Wealth of Nations. The full name of that is An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations in 1776. This is the full name of the book. Nature or resource can be man-made, or man can be a resource, or natural resource like iron, coal, etc. Man is a resource when he is skilled and technically sound. In this book, The Wealth of Nations, he gave 4 phenomena: natural law, invisible hand, laissez-faire, and production function. What did he say? These all, the 4 phenomena are interrelated. How interrelated? I'll let you know. See, if
any individual is left free, if he is not intervened, he will try to have his optimum output. This is natural law. Invisible hands, if in a market nobody is intervening, there is invisible hand working which will get everything in the equilibrium, right? He gave an example. In this example, he wrote like this in the book itself: benevolence of brewer, baker or butcher does not give us dinner. He was a Scottish person. उनका कहना था कि ब्रूअर यानी शराब बनाने वाला, वहाँ शराब पी जाती है क्योंकि स्कॉटलैंड एक ठंडी कंट्री है। बेकर जो खाना देता है, बुचर यानी कसाई, वहाँ नॉनवेज भी खाया जाता है। उस अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि इनकी कोई बेनोवेलेंस नहीं है जिसकी वजह से हमें डिनर मिला है। इट इज़ ड्यू टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ये उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि जब ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, दे गेट समथिंग इन रिटर्न, इसीलिए ये एक्टिविटीज़ करते हैं। सो इट इज़ नॉट ड्यू टू देयर बेनोवेलेंस दैट ही इज़ गेटिंग अ डिनर और एनीबडी इज़ गेटिंग डिनर। दैट मीन्स इन द इकोनॉमी we can see the self-interest and competition are the invisible hand which work, right? Here we can give an example of Jio. जैसे Jio कम्युनिकेशन की फील्ड में आया, जब इन्होंने रेट्स कम कर दिए, मोबाइल के चार्ज कम कर दिए, तो एयरटेल जैसी कंपनी को भी रेट्स डिक्रीज करने पड़े। Why did Jio did that? बिकॉज ये इसका सेल्फ इंटरेस्ट था। यहाँ कॉम्पिटिशन आ गया जियो और एयरटेल के बीच में। इसका बेनिफिट किसको मिला? कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को। इसका मतलब है एडम स्मिथ का जो ये कहना था कि एक सोसाइटी में सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से और कंपटीशन की वजह से सब चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, और एक्चुअली कौन बेनिफिट करता है? एट लास्ट सोसाइटी। ओके, तो दिस वॉज द नेचुरल लॉ एंड इनविजिबल हैंड। थर्ड वॉज laissez-faire. Laissez-faire is a French word. Let him do. इसका मतलब है let him do, उसे करने दो। ठीक है, यहाँ there is no intervention of government. तो एडम स्मिथ साहब का कहना था कि गवर्नमेंट should not interfere और market forces पे छोड़ देना चाहिए सभी चीज़ों को। Then we have production function. In this production function, he took three things: land, labor and capital. लैंड, लेबर, कैपिटल इनको लिया एज ए प्रोडक्शन फंक्शन किसी भी जगह के लिए। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पहले ली थी, एक्चुअली फैक्टर्स प्रोडक्शन 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एडम स्मिथ साहब ने इसको इंक्लूड नहीं किया था। ओके, तो ये हमारी होगी एडम स्मिथ की डेफिनेशन, विच वॉज वेल्थ सेंट्रिक। इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, तो उनकी डेफिनेशन पूरी की पूरी वेल्थ सेंट्रिक थी। देन के अल्फ्रेड मार्शल। अब अल्फ्रेड मार्शल जो थे, इन्होंने जो है इसकी जो नैरो अप्रोच थी उसे खत्म किया और एक ब्रॉड अप्रोच पे आए। ही सेड कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जब हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में जो भी आदमी करता है, वो अगर आदमी ग्रुप में कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। हिज अप्रोच वॉज वेलफेयरिस्टिक, इट वॉज ब्रॉड। देन केम रॉबिन्स। रॉबिन्स की डेफिनेशन देखें तो उनकी डेफिनेशन को कहते हैं हम लोग स्कैरसिटी डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन है स्कैरसिटी डेफिनेशन। ही सेड द रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड बट द वांट्स आर अनलिमिटेड। एज वांट्स आर अनलिमिटेड, to fulfill that there is a relationship between ends which is unlimited wants which are not of same importance. हो सकता है आज हमारे लिए कोई और इंपॉर्टेंट हो, कल कुछ और। जैसे कोई बीमार है तो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंस होगी डॉक्टर, नहीं तो क्लोथिंग। जैसे अभी चल रहा है टाइम, उसमें क्या है? डॉक्टर। ओके, वी हैव स्कैर्स मीन्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज कम है। हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारी डिमांड अभी, तो वी सब्स्टिट्यूट यानी हम अल्टरनेटिव यूजेस करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई रॉबिन्स की। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सबसे आखिरी डेफिनेशन है प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन की, जो है ग्रोथ ओरिएंटेड। ये स्कैरसिटी ओरिएंटेड थी, ये ग्रोथ ओरिएंटेड। इसी चीज को उन्होंने ग्रोथ पर्सपेक्टिव से लिया। जैसे हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी इज अ
डायनेमिक सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी है मैन एंड सोसाइटी की विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्कैर्स रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर। ये जो पॉइंट था दैट वाज द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ द डेफिनेशन, क्योंकि ये डायनेमिक चेंजेस को लेती है, ना कि स्टैटिक। नाउ विल डील विद ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। रैगनर फ्रेश ने इसको इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली एडम स्मिथ के टाइम से काफ़ी समय तक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स ही चलती रही। देयर वाज अ रीज़न व्हेन 1929-30 के बीच जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका इवोल्यूशन हुआ। वो क्यों हुआ हम अभी डील करेंगे। फर्स्ट वी विल टेक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको हम लोग लेते हैं वर्म्स आई व्यू भी बोलते हैं। वर्म्स आई व्यू क्यों? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल, अ सिंगल यूनिट और अ फर्म इंडिविजुअली। एक एक को लेंगे। जैसे एक क्लास है, अगर इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो हम अगर एक एक स्टूडेंट की सिंगल आय देखेंगे, इनकम पूछेंगे, तो दैट इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन दिस केस अगर मैं ये पूछ लूँ कि टोटल इनकम आप लोगों की क्लास में एवरेज इनकम क्या है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी अगर वर्म्स आई व्यू ले, इफ इट इज अ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट जो है यहाँ इसको देख रहा है, यानी ये अप्रोच जो है ये हमारी बॉटम से टॉप की तरफ जाएगी। यानी हम इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को समझेंगे कि एक पर्टिकुलर फर्म में क्या डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, बहुत सारी फर्म्स को लेंगे और इनके बेसिस पे एक हम अप्रोच बनाएंगे, यानी बॉटम से हम लोग टॉप की तरफ जाएंगे। दिस इज बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, एक पर्टिकुलर जगह पे पुणे के मान लीजिए ऑरेंजेस ले लें, वहाँ उस फैक्ट्री में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, इफ़ वी टेक दैट, तो ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। इसमें हम लोग सिंगल चीज़ें लेते हैं, जैसे कि लेबर एक पर्टिकुलर जगह का, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक चॉइसेस क्या है, इंडिविजुअल फर्म्स की क्या चॉइसेस हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या डिसाइड करते हैं, और यहाँ हम डिमांड और सप्लाई इसको भी सिंगल लेते हैं, एग्रीगेट नहीं लेते। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, यहाँ पे हम माइक्रो और मैक्रो को ले रहे हैं। पहले हम मैक्रो समझते हैं। मैक्रो को हम लोग कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब हम इकोनॉमी को एज ए होल लेते हैं, यहाँ हम एग्रीगेट वेरिएबल्स को लेते हैं बड़े बड़े। वहाँ हमने क्या लिया, सिंगल इनकम ली, पर कैपिटा इनकम ली, एक सिंगल इंडिविजुअल की इनकम ली, या हम लोग नेशनल इनकम लेंगे। यानी छोटे कॉन्सेप्ट को जब हम ओवरऑल देखेंगे तब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जैसे यहाँ वहाँ प्राइस इंक्रीज हमने एक फर्म का देखा, यहाँ हम पूरी इकोनॉमी के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बिग पिक्चर देती है। यहाँ वहाँ हम सिंगल अगर व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है उसको देख रहे हैं, इंडिविजुअल को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द होल इकोनॉमी, सी नेशनल इनकम। सो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सभी को लेता है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि पहले केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स थी और हमने पढ़ा कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज एडम स्मिथ। ये कैसे आई माइक्रो इकोनॉमिक्स? एक छोटा सा रीजन था। एक्चुअली देयर वाज अ ग्लोबल क्राइसिस। ठीक है, 1929-30 में एक ग्लोबल क्राइसिस आया। इससे पहले ये सोचते सब लोग कि इकोनॉमी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे बताया अभी कि अगर अप्स एंड डाउन्स होंगे डिमांड और सप्लाई में तो इकोनॉमी कहीं सेट हो जाएगी जहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम में ला देगी। बट दिस डिड नॉट हैपन इन 1929-30। और तब जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं केन्स, ही केम एंड गेव अ थ्योरी। ही सेड डिग द वेल एंड फिल इट अगेन। इसका मतलब ये था कि जब वो ग्रेट डिप्रेशन आया तो क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट था वो बहुत कम हो गया, प्राइसेस बहुत बढ़ गए, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, वो चीज़ें खरीद नहीं पा रहे थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। तो दैट टाइम उसने कहा कि गड्ढा खोदो और उसको भर दो। इन दिस वे यू आर जनरेटिंग अ एम्प्लॉयमेंट। दो इससे हमें इकोनॉमी में कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन कम से कम उनके पास परचेजिंग पावर आ रही है। परचेजिंग पावर आएगी तभी पर्सन विल बी एबल टू डिमांड, और जब डिमांड होगी तभी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी। यहाँ हमने देख लिया ये इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, ये प्रोडक्शन फर्म सिंगल लेवल पे, और यहाँ पे जीडीपी और कंट्री मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर now have a difference. It studies individual income, it studies national income, demand and supply of labor, demand and supply of not a single labor but total employment, household and firms single, then deals with the aggregate decisions. Individual prices are taken and यहाँ पे overall price is taken, right? यहाँ analyzes demand and supply of goods. यहाँ पे
केवल डिमांड एंड सप्लाई नहीं, यहाँ देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. सो एंड में वी विल हैव अ व्यू व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स इज द बेस, इट इज अ थियोरी जिसके बेसिस पे इकोनॉमी वर्क करती है. इकोनॉमी क्या होती है? एक इकोनॉमी होगी, एक विलेज की इकोनॉमी हो सकती है, एक कंट्री की. हम खाली इकोनॉमी बोलेंगे तो पूरी बात नहीं होती, हमें बोलना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी ऑफ अ विलेज, तब ये पूरा होगा. इकोनॉमिक्स जो है कुछ थियोरीज बनाती है ना, और उसके बेसिस पे इसको अप्लाई करती है, यानी ये थ्योरेटिकल पार्ट है और ये एप्लीकेशन पार्ट. आई होप इस पूरे लेक्चर में आपको जो इकोनॉमिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे. वी विल कम अगेन. टिल देन टेक केयर, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए.